So hi, good evening everybody. This is Bishwajit Datta, Director, Success Ahead Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. So a warm welcome to all of you. So all the people who are recently joined the online lecture at this moment of time, the aspirants of 2023 CLAT, which we are expecting to be somewhere in the month of December. And this session is absolutely focused for all such people. I could see some of them have joined. Again, there are certain queries with respect to CLAT 2022. See, sir, I could see that somebody has written that I have scored this much of a rank. Okay, sir, I could answer you. Just give me the whole of your rank and your category rank to my WhatsApp. I'll be responding to you through that. The purpose of this particular class today is for the class or the CLAT 2023. You always realize this fact that the past experiences do create a perception as to how you could move ahead. What are the difficulties that you are supposed to face in the time to come? What are the various objectives that you need to keep in your mind, especially when you are targeting something in the near future, when you are always constrained with a certain amount of variables, including the most important one is time. As you know that we have only 5.5 months of time to go for CLAT 2023. So we have to very sagaciously use the time that we have right now in our pocket. Specifically the people who recently have written the CLAT 2022 and their ranks are not very good and they have not received any of the calls from the CLAT consortium, and they must be thinking whether we would be getting certain calls in the time to come during the 3rd, 4th or the 5th counseling. Will it happen or not? The time would tell you everything. Now there are so many people who could realize this fact that since I have given a particular fees to CLAT consortium, so maybe in the time to come I may get my name in that list. As you know that CLAT consortium has called, I would say, 5 times of the people, 5 times of the number of seats that are available in the different colleges of CLAT. So if we have 2000 seats, then the CLAT has given an invitation to 10,000 students. So the proposal has been given to 10,000 students. So they definitely have a certain amount of aspirations, certain amount of calculations in their mind that definitely since we have invited for the participation in the CLAT counseling, so maybe in the 3rd list or maybe in the 4th list or in the 5th list, I'll be getting my name. So telling you very frankly, most of the people have already entered into the counseling sessions, session. Almost in the 2nd list, you will be finding more than 98% of the people to be required for this counseling. Baki 100, 50, at max 110, 120 people would be added further, and that would happen sometime later in the 5th counseling. So if you realizes this just by your calculation that you do not fall in the ambit of that calculation, so just forget about it and go for CLAT 2023. As you know, you are definitely going to have very less amount of time, so you need to be very calculating while preparing for the next CLAT if it happens in the month of December. So if it happens in the month of December, so we have only 5.5 months of time. Now we have 3 different reference paper available to us that could help us to understand what exactly the paper of CLAT 2023 going to be. So for that you need to have the CLAT paper of 2022, 2021 and 2020 in your hand at the very first day, and give a 5 days for the next 5 days to that calculation only as to what should I prepare, what should I read and how do I prepare, without entering into a trap. ठीक है, तो पहले 5 दिन आप उन तीनों पेपर्स को उठा के एक बार अच्छे से देखें कि उनमें क्या पूछे गए हैं, किस तरह के इश्यूज पूछे गए हैं, what are the various issues that they have covered and what
understanding that you have right now as a person on the very first day of your preparations, and to what extent to that paper, whether it is 40% or 50% or 60%, even if it is 10%, it's okay. What percentage of the paper you think that you understand? Now here the meaning of understanding is a little bit of different than what is the actual meaning of understanding in the dictionary. Here I believe that when I use this word understanding of the paper is just, I mean that when I read something, I actually understand the 360-degree of that particular passage or particular theory which is explained in that paper. Now if you do not have the real life experience, a real life understanding, sometimes you won't be able to correlate with what is actually been written in the passage. So we need to accumulate lot of learnings, lot of understanding from the real life experience into that paper. That is probably you are going to face it. So you have only 3 papers, 2020, 21 and 22. Have all those papers in your hand and try to read each and every question from the first question to the last questions. That means all 150 into 3 is 450 questions. Try to read all those 450 questions one by one and try to read in a manner that you should understand the 360-degree of every question, whether it is mathematics, or it is legal reasoning, critical reasoning, English, or it is GK. Just read everything. All right. Most of the people sometimes have a perception that since recently CLAT 2022 has occurred, so till CLAT 2023, I would have only 5.5 months of time. So the current affairs part would be maybe within this time only. It is quite possible that you may have a question from the month of February of 2022 to be asked for the exam 2023. That you will understand only when you go to the analysis of that part. So CLAT 2022 paper is the most appropriate paper to analyze. When you analyze each and every paper, when you understand each and every paragraph what is given in the paper, you are able to solve the paper. तो ये अपने आप को acknowledge करना that yes, what I read I understand. Now there is no accumulated question that would help you, that I have read this particular question so I would be getting good marks in the paper, is absolutely unnecessary. This is absolutely redundant. तो उससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट पेपर में आएगा, या मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा प्रैक्टिकली. राइट. सो what is going to help you, that when I read it I can connect it with what I have read it, and that would definitely going to help you a lot. So a reading is must. आपको रोजाना बहुत कुछ पढ़ना है. अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर रीडिंग क्या करें, कैसे करें. नाउ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए. Sometimes the only newspaper may not help you because you read most of the issues that are the contemporary issues. Obviously in the paper you would be having contemporary issues, but small article on a contemporary issue would not help you. So when you read one particular contemporary issue, you should go to Google or you should go to some other resource and try to read the similar kind of article from all across and try to create your own viewpoint on that. So you would be having an understanding that this is in the plus of that subject and this is in the minus of that subject. So you will be able to correlate with that. तो जब तक आप बहुत रीडिंग नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा. अभी हमने क्लास में क्या चालू किया, वी मेड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स दैट इज ऑन सोशल साइंस, पर्टिकुलरली सारे सोशल इश्यूज जो हमारे सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है, ऑल द सोशल इनजस्टिस, तो उसके ऊपर बुक्स एक बच्चा एक हफ्ते में एक किताब पढ़ेगा. इससे अवेयरनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. एट द सेम टाइम यू विल डेवलप अ सेंसिटिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग the basic problems that are prevalent in the society. Now if you analyze the whole paper practically, the CLAT 2022, the whole paper on legal reasoning was based on either the social issues basically that are related to marriage, other social issues that are related to constitution. Almost 90% of the paper of legal reasoning was based on such social issues. So if you understand the problems, if you understand the social issues, anything that is related to social science would definitely help you developing your sensibility
towards those social issues, and you'll be able to coming out with your own ideas. In fact, आप critical reasoning यदि उठाएंगे ना, you will be finding the same thing. I can put up you one particular reasoning. क्योंकि पेपर हो जाता है, हम उस पेपर को रख देते हैं, हम उस पेपर को दोबारा यूज नहीं करते. एक टेस्ट पेपर को यदि आप 2 बार अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, तो यू विल डेवलप लॉट ऑफ सेंसिबिलिटी. One passage, when you read 2 times, you will develop a double sensibility. When you read it 3 times, you will get a new horizon of understanding. When you read it again, you will become an expert in giving your own viewpoint on that. I'll put up an example. You could see that behind me. I just have kept the CLAT paper of 2022. Just as a glimpse, what I'm saying that I have too many sections. चलो quantitative ability के लिए बाद में बात करते हैं. Let us come to an understanding of this section. कहाँ से critical reasoning शुरू होता है? Because people sometimes are not able to correlate as to what has come in the paper and how do we think about it. चलिए, ये आपका critical reasoning शुरू होता है. आप इसको एक बार देखिए. ये आपका लॉजिकल रीजनिंग शुरू हुआ. दिस लॉजिकल रीजनिंग इज फुल्ली बेस्ड ऑन ए प्रॉब्लम और इशू. ये इशू आप एक बार पढ़िए. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पर्टिकुलर इशू कंप्लीटली. आई डोंट वॉन्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द नेक्स्ट 5 minutes. Just read what I'm trying to tell you. You will understand after this. If you want me to read this along with you, I can do so. Students decide to attend college for several reasons. These reasons include career opportunities and financial stability, intellectual growth, a time for self-discovery, norms, obligations, and social opportunities. Outside demands in society, such as technology changes and increased educational demands, also drive the need for more students to attend college. The students then spend the next few years trying to discover a path and find their way so they can become successful. The transition to college presents students with many new challenges, including increased academic demands, less time with family members, interpersonal problems with roommates, and romantic interests, and financial stress, competitive academic work, and uncertainty about future employment and professional career were also noted as a source of stress. The transition to college represents a process characterized by change, ambiguity, and adjustment across all of life's domains. The transition towards independence and self-sufficiency has been characterized as a state arousing and anxiety-provoking by many college students. Failure to accomplish and develop these characteristics of development and maintain independence may result in life dissatisfaction. Emerging adulthood has also been noted to augment college students' vulnerability to stress. Many students experience their first symptoms of depression and anxiety during this time, but a growing problem is that college campuses do not have enough resource to help all of these students. It has been noted that 75 to 80% of college students are moderately stressed and 10 to 12% are severely stressed. Now, frankly speaking, when you read this particular passage, what you think before getting into the questions, what you think? आपको कितना समझ में आया? What is your percentage of understanding when you read this short passage? जब आप पहली बार पढ़ोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको कुछ समझ में आएगा. जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. जब आपको तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा. Isn't it? But the problem is, in the exam, you cannot take this advantage of reading a particular passage for 3 times and then go for a particular answer. So what we need to be aware of the problems that is in the social arena. Almost each and every problem, if you encounter, will be able to understand what has been given in the passage. Now, 5.5 months of time, we have to do that. Now, nobody can help you learn those things unless you yourself read for most of the time. Correct? Now, when I read this particular passage, I need to understand that there is a problem that has been discussed by the author. The problem that has been discussed by the author in this passage or through this passage, and that the problem is nothing but the stress. The stress of a student when he enters into a college life. तो एक स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, एंड व्हाट आर द वेरियस
reasons for that student to encounter with stress, and what are the problems that the college is still not able to help those students in order to make that students stress free. तो stress के कितने सारे कारण हो सकते हैं, that has been actually been decided. So the author has highlighted the stress. Probably you can say हमारे पास कोई proper management नहीं है stress का with respect to students. When he has a transition period, one stage to another, he enters into a college in order to learn new things so that he could become successful. Lot of changes that happens in the society, in the body, and along with that the student is going to learn a lot of things. तो उसके ऊपर बहुत सारे pressure है, successful भी होना है, सब कुछ करना है and all that. Along with that he is going to develop stress. और उसमें ये भी बताया गया है कि moderately stress वाले बच्चे कितने हैं और ज़्यादा stress, severely stressed वाले बच्चे कितने हैं. तो एक स्ट्रेस के ऊपर पूरा पैसेज है. नाउ यू कैन मेक योर क्वेश्चंस ऑन दैट स्ट्रेस. जैसे पर्टिकुलरली यदि आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा पहला सवाल शायद मैं ये बनाऊंगा कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल इन दिस पैसेज, और गिव मी अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. ओके, और इससे रिलेटेड कि इस पूरे पैसेज के अंदर ऑथर ने स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए हैं. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स द ऑथर इज ट्राइंग टू give through the passage so that we can alleviate stress. What are the various provisions that the author think or the author realizes that a college should adopt in order to alleviate stress from the students mind. ऐसे आप बहुत सारे questions बना सकते हो. आप इसके question के pattern देखो. What according to you is the objective of the study of the present paragraph? Now from the options you can deduce which is the right answer. पहला, to map the various stages of pressure points of adulthood in the process of education, to narrate the anti-family agenda in the current education system, to pinpoint the obstacle targeted against meritorious students. Nothing has been talked as option B and option C. तो आप आराम से पता कर सकते हो. The author is trying to understand the various stages of pressure points of adulthood in the process of education. When you enter into a college, definitely you try to do a lot of good things in life so that you want to always come first, so that you would always get a better job, so that you could improve a lot of things in yourself. You not only want to learn a lot of developments that is happening in the day-to-day life, but at the same time you want to be in the limelight at the same time. So to have all those things, you have to meticulously perform lot many works. तो हर काम में आपको stress होगा. So the author is trying to calculate or measure the various special pressure points in life, talking about the various stages of the life of a student in a college. तो मेरे ख्याल से पहला बहुत clearly इसमें बता रहा है, and there is nothing difficult to understand. Second वाला देखिए, which factors as per the author cause more stress among students, college students. Pressure from parents and society towards greater educational needs and increased competitive academic work. Failure to develop social, successful romantic interest, financial constraints and interpersonal issues with roommates. Failure to adapt to the transition of college life and to adjust various life domains in tune with the needs and requirements of the college life. Inability to manage time constraints and the uncertainty pertaining to their future. Now look at this. All the points are very well narrated. Somewhere all of them are closely saying the same thing, but you need to find out the best that goes with the passage. Pressure from parents, nothing like that has been discussed. Failure to develop successful romantic stress, nothing has been stressed in the passage very heavily. Failure to adapt a transition to college life and to adjust various life domains in tune with needs and requirements of the college life is very much talked about this particular passage. आपके कॉलेज लाइफ के अंदर अलग अलग ट्रांजिशन पीरियड में अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस डेवलप होना इज द एसेंस ऑफ द पैसेज which the author has tried to narrate through this particular passage. So C would come as the right option. ये वाला देखिए, which of the following fall closest to the underlying assumptions in the present day. हम कुछ assume करना चाह रहे हैं, so something has to be assumed. Problem solving ability among students, college students, is negatively associated with the steps, symptoms of depression and anxiety. Students lean towards unhealthy coping skills in order to try to lower the stress that they experience. Romantic interest is an antidote for stress among the students in the college.
स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव फॉर ईच स्टूडेंट. ना हर व्यक्ति का स्ट्रेस अलग अलग होता है सब्जेक्टिव, पर आपको इसमें ढूंढना है कि इसमें क्या आप अज्यूम कर सकते हैं इन द प्रेजेंट स्टडी. इस स्टडी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमोंग स्टूडेंट इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी. सी, why do we get stress? Now think of a situation that you're not able to get good marks in the class. So what will happen? Your parents or your teachers are going to ask you something about that. So without trying to understand the reason why I have not scored, you would be trying to act in a manner such that you would be getting yourself away from the problem solving ability. तो आप क्या करेंगे? आप लड़ने लग जाएंगे. मतलब कई बार होता है ना, हम कहते हैं ना कि यार तुमने उससे बात की, तुम्हारी प्रॉब्लम ये थी, पर तुमने गुस्सा छोटे बच्चे पे उतार दिया. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. मतलब हम रियल प्रॉब्लम्स को ना जानकर हम कुछ और करके चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. घर में होता है, हर जगह पर होता है. इट इज़ नॉट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी वन इज लिविंग ए लाइफ ऑफ प्योरिटी. ऑल ऑफ अस आर अंडर ए प्रेशर. घर पे पेरेंट्स को प्रेशर हो सकता है, माता पिता को प्रेशर हो सकता है, बच्चों को प्रेशर हो सकता है, किसी को भी प्रेशर हो सकता है. और प्रेशर के कारण स्ट्रेस होता है. और स्ट्रेस का मतलब यही होता है कि इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग, और इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग, व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम which is a real life problem, you try to divert towards something else which is not at all associated with that. जैसे कई बार होता है ना, बच्चों को जब समझ में नहीं आता गुस्सा करने लगते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं एकदम. दैट इज हाउ द स्टूडेंट्स मैनेज देयर स्ट्रेस. पापा ने कुछ डाटा, कुछ बोला, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. दे डू नॉट आंसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द स्टूडेंट इज अंडर स्ट्रेस, बिकॉज what you are expecting at that moment of time, you are expecting that whenever a questionnaire is going on between parents and the child should be able to answer the father asked the question. यदि पिताजी ने ये पूछा कि आपके बेटा नंबर क्यों नहीं आए, कई बार वो टोन डिफरेंट हो सकता है. कई बार वो टोन बड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है कि भाई आपके इतने सारे पढ़ाई पे हमने पैसे खर्चा कर दिया, वाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. एक टोन समझना. नाउ द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस टोन और उसको इस प्रॉब्लम का आंसर देते आना चाहिए. ये बात बोलने में कोई बुराई नहीं है कि पापा मैंने जो पढ़ा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम मिसिंग द राइट ऑप्शन. और गलती हो रही है. उस जगह पर स्टूडेंट क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा मैंने तो दिन भर पढ़ाई किया, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं. दिस इज स्ट्रेस. अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे स्ट्रेस हो गया? एक्चुअली वो स्टूडेंट इतना पढ़ा लिखा है कि उसको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, बट ही इज आंसरिंग समथिंग एल्स. So he is diverging the topic towards something else and is trying to manage his stress, isn't it? तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? Problem solving ability has been negatively associated with the symptoms of depression and anxiety. आपकी एंजाइटी और आपके डिप्रेशन को के कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इफेक्ट हो रही है. ठीक है? Depression will lead to stress. So definitely when you have depression, you would be stressed. When you have stress, you won't be probably not be able to solve the problem. The real issue cannot be solved. पैसेज के अंदर ये भी बात हुई, कई बार बच्चे कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रूममेट के साथ लड़ाई कर लेते हैं. कई बार एक स्टूडेंट ने बोला कि मेरे को सोना है, लाइट बंद करो. इस बात पे लड़ाई हो सकती है. Now the problem is somebody is asking you or requesting you to put up the light so that I want to have a sound sleep. And at that moment of time you feel like studying, right? तो अब यहाँ पर solution क्या होना चाहिए? As you know, when you live in a hostel life, having somebody staying with you in that particular room, you have to always, manage in a manner that both of them will be able to, compatible to the situation and circumstances. लेकिन एक व्यक्ति अपने सारे काम करने के तरीकों को बिल्कुल नहीं चेंज करता, तो लड़ाई तो होनी है. राइट? तो यहां पर लड़ाई क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट वन पर्सन वांट्स टू स्लीप एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स. यू वांट टू टॉक टू समबडी, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, यू वांट टू बी वैकेंट एंड वांट टू स्टडी. अब किसी को 2 बजे तक जब जगाओगे आप, 2 बजे वो बंदा बोल रहा है मेरे को सोना है, और आप बोल रहे हो नहीं अभी भी मैं लाइट ऑन करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. तो यहां पर वो व्यक्ति जो जागने की कोशिश कर रहा है वो गलत है. So these two people cannot live at that point of time in the same room because of this,
नेगेटिव बिहेवियर दैट दे हैव टुवर्ड्स ईच अदर, एक को सोना और एक को नहीं सोना है। तो जब हम किसी के साथ रूम शेयर करते हैं तो वी हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारा सोने का उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। वी नीड टू हैव disciplined at that moment of time. So these are certain real life experiences which a person has to solve according to his sagacious or understanding of the problem. So if you do not understand the problem, you won't be able to resolve it. तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बिकॉज ही इज रॉन्गली एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यदि वो नहीं होता तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो व्हाट इज द passage that is assuming, the passage is assuming that whenever we are stressed out, our problem solving ability gets automatically stressed. यदि मेरा दिमाग बहुत डिप्रेस्ड है तो I'll be definitely not talking properly with my parents, with my friends, with my teachers and so on. यही बात यहाँ पर ऑथर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं suitable title to the paragraph, तो मैं यही बोलूँगा, stress in the various transitions of life, right? Stress in the various activities of life of a college going student. This is one and the same thing that you can figure it out. अब इसी बात को आप अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हो। जिसकी वोकेबलरी और अच्छी होगी वो उसको उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच ला करके बोलेगा। जैसे यहाँ पर बोला गया ट्रम्प एंड टर्बुलेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में बात नहीं हुई। नेग्लिजेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय पेरेंट्स, उसके बारे में बात नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी, उसके बारे में बात नहीं हुई। द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट टू मी इज नथिंग बट द ट्रम्प एंड टर्बुलेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इसलिए यदि स्कूल को कॉलेज को ये पता है कि हर स्टूडेंट बराबरी से परफॉर्म नहीं करता है, क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो कोई लास्ट भी आएगा, कोई सिलेक्ट होगा तो कोई सिलेक्ट नहीं भी होएगा। जब कोई सिलेक्ट नहीं होएगा उसके लिए कॉलेज के पास क्या सोल्यूशन है? या कोई बच्चा कॉलेज रेगुलर नहीं आ रहा है, स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, कॉलेज इस बात को रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रावधान कर रखा है? डू वी हैव प्रॉपर कॉलेज काउंसलिंग एंड मेंटेनेंस committee that could help students who are basically under a lot of turbulence, being not performed in the class, being not selected any of the teams? तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कॉलेज के पास कौन से प्रावधान है? That means the college education system somehow is failing to detect the various problems that the college students or the school students are facing and how to deal with it. तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प एंड टर्बुलेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। अब लास्ट वाला देखिए, विथ रेफरेंस टू अबव पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द मोस्ट plausible solution as a coping up mechanism for college students. Now I'm telling you, if you're not a student of psychology, you won't be able to answer this question. This is called as coping up mechanism. ये एक क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट को आंसर करने में, because this is a psychological term. Somebody who studied psychology will be able to understand the meaning of this coping mechanism, coping up mechanism. Coping up mechanism मतलब जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हम कुछ और करने लगते हैं, जस्ट टू डाइग्रेस दैट टॉपिक फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे मुझे कॉलेज के अंदर मुझे रूममेट के साथ अच्छे से रहने के बजाय, क्योंकि मेरे पास छोटा सा सोल्यूशन है, इफ आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर पर्सन, आई मे बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम जस्ट बाय मेकिंग सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द वे दैट वी लिव इन ए रूम। बट ऑन द अदर हैंड उस काम को करने के बजाय आई हैव स्टार्टेड फाइटिंग विद दैट गर्ल और आई हैव स्टार्टेड फाइटिंग विद दैट बॉय, मैं उससे लड़ने लगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉपिंग अप मैकेनिज्म। अवॉइड करना, आपकी प्रॉब्लम है कि आपके नंबर नहीं आ रहे। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू, पीपल डू नॉट डू मैथमेटिक्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इतने लल्लू से 15 सवाल इस साल आए थे, आई हैव सीन इनवेरिएबली एवरीबडी लेफ्ट। जिस बंदे ने टॉप किया है पूरे कंट्री में, आप उसके पेपर को देखना, उसने 15 में से 15 नंबर लिए होंगे। वो इतने फ्री के नंबर है जिसको ज्यादातर बच्चों ने छोड़े हैं। आई एम टेलिंग यू, somebody at a score of 75 to 85, they all must have left the mathematics questions, most of them. आपको पता है क्या है? This is called as copied up mechanism. कि जब आप उसको कर नहीं पा रहे हो तो आपके पास क्या सोल्यूशन लगा, बेस्ट छोड़ दो। अवॉइड करना इज द बेस्ट सोल्यूशन। समटाइम्स पीपल थिंक व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड आउट, जब मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो मैं इसको छोड़ना बेहतर समझ रहा हूं।
हमेशा छोड़ना बेहतर नहीं होता है, अवॉइड करना बेहतर नहीं होता है, अटैक करना बेहतर नहीं होता है, अज्यूम कर लेना कुछ बेहतर नहीं होता, साइलेंट हो जाना बेहतर नहीं होता है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो यदि मेरे को स्ट्रेस है कि मेरे नंबर 45 आए हैं एंड आई कुड नॉट सिलेक्ट इन द एग्जाम, नाउ माय फादर इज नॉट वेरी हैप्पी, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइलेंट हो गया, दरवाजा बंद कर रहा हूं, खाना नहीं कर रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन, द नेक्स्ट डे द फादर विल कम टू यू एंड से चलो बेटा जो हो गया सो हो गया, बिकॉज वो रोज तो नहीं डांट सकते ना आपको, कल बोलेंगे चलो ठीक है जो हो गया, अब कौन सा कॉलेज लेना है। तो स्टूडेंट कुछ ऐसा करते हैं कि उनका स्ट्रेस वो मैनेज किसी ऐसे प्रकार से करते हैं विच इज नॉट एक्चुअली वारंटेड। They unnecessarily brought it into picture just to make other people feel that you are going through certain difficult situations of life, and that is called as coping up mechanism. और ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। You will find somebody at home definitely be doing it. यदि घर में 6-7 लोग करते हैं, ऐसे में आपको एक बंदा जरूर मिलेगा जो कॉपिंग अप मैकेनिज्म के साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है। आपको मैं बता दूं, कभी भी कॉपिंग अप मैकेनिज्म के साथ स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना चाहिए। यू नीड टू ओपन, हमारे इसमें कहते हैं ना कि यार जो भी बात है ना मन में, वो उठा करके बोल दो कि मेरे को ये नहीं बन रहा, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे से सॉल्व नहीं होता है, मेरे को ये मीनिंग्स नहीं समझ में आती है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। खैर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। तो देखते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड अप्रोच काउंसलर फॉर कॉपिंग अप स्ट्रेस। अच्छी बात है। तो यहाँ पूछा गया कि ये रेफरेंस, इस पैराग्राफ के रेफरेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द मोस्ट प्लाउजेबल स्टूडेंट एज ए कॉपिंग अप मैकेनिज्म फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कॉपिंग अप मैकेनिज्म को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। अब यदि कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, किसके पास जाएगा, टीचर के पास जाएगा, कोचिंग सेंटर में बच्चे बैठे हुए, अब किसी को बन नहीं रहा है, किसके पास आएंगे, सर के पास आएंगे कि सर नंबर नहीं है, क्या करूं। आपको चुपके से बैठना नहीं है, यू हैव टू कम टू द राइट पर्सन कि साहब ये नंबर नहीं आ रहे, सब करके देख लिए तभी भी नहीं आ रहा, अब क्या करूं। यू टेल मी वेरी फ्रैंकली, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन विच इज डिमांडिंग इन द क्वेश्चन। तो कॉलेज में है, तो कॉलेज में काउंसलिंग कोई कमेटी होगी तो उसके पास जाओ, या कॉलेज में ऐसा कोई टीचर होगा जिसको आपको लगता है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट टीचर, आप उनको जाके प्रॉब्लम बताओ। आपको लगता है मेरा प्रिंसिपल बहुत ओपन माइंडेड है, तो मैं उनको जाके प्रॉब्लम बताऊं। दैट मीन्स हियर द क्वेश्चन इज डिमांडिंग कि व्हाट इज द मोस्ट प्लाउजेबल सोल्यूशन फॉर ए स्टूडेंट हु मस्ट बी फेसिंग ए कॉपिंग अप मैकेनिज्म। उसको डील करने के लिए किसके पास जाना चाहिए। Obviously, don't उसमें keeping in view that a large number of students are experiencing stress, college must take steps reduce course curriculum and peer pressure. Come on, ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस के लिए मैं सारे कॉलेज में सिलेबस कम कर दूं ना के बराबर। दिस इज नॉट ए प्लाउजेबल सोल्यूशन। College authorities shall provide access to counseling, and every student experiencing stress must engage in some form of coping and mechanism to alleviate stress. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। The student must learn to differentiate between short-term and long-term stress, has nothing to do with the problem. So therefore, option number 3 is the right answer कि college authorities के पास ऐसी कोई काउंसलिंग करने की प्रावधान होनी चाहिए ताकि हर वो स्टूडेंट जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एंगेज में है, तो वो उस जगह पर जाकर के अपने स्ट्रेस के कायदे को चेंज कर सके। अब ये चीज है ना, कोई किसी को ऐसे नहीं पढ़ा सकता। आप यदि बोलोगे सर मेरे को ये पढ़ा दो, ये नहीं हो सकता। ये होता एक्सक्लूसिव रीडिंग से, और जब भी आप एक्सक्लूसिव रीडिंग करें, ऑलवेज कीप ए डिक्शनरी विथ यू। इसके अंदर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इतना डिफिकल्ट है जो आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड जरूर आए जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि मैं इन पूरे ऑप्शंस को देखूं, क्वेश्चंस को देखूं, प्लाउजेबल सोल्यूशन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द मोस्ट प्लाउजेबल सोल्यूशन। प्लाउजेबल मतलब बेस्ट सोल्यूशन, द बेस्ट रेमेडी यू कैन थिंक ऑफ। यहां पर ट्रम्प एंड टर्बुलेंस, ये नॉर्मल वर्ड्स है, आपको आना चाहिए। ये आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा दैट यस ऑल द ऑप्शंस हैव वेरी नॉर्मल पॉइंट्स, और इसको हर बच्चा समझ सकता है। तो आपको नॉर्मल वोकेबलरी की जरूरत है। आपको मैं एक और बात बताऊं, आप कभी भी ना वोकेबलरी रटने के लिए बुक मत खरीद लेना, प्लीज नेवर डू इट। ऑलवेज लर्न वोकेबलरी फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअल मेथड। दैट मीन्स जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर की वोकेबलरी आपको याद करनी है। ऐसा नहीं कोई भी रैंडमली वोकेबलरी आपने उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। नेवर डू दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, इजंट इट। तो जब आप कुछ पढ़े, ऑलवेज कीप ए डिक्शनरी विथ यू एंड ट्राई टू कोरिलेट
एक बार पढ़ने के बाद कोई 4-5 वर्ड यदि आपको लगता है कि उसके अंदर ऐसा है जिसको आपको जानना जरूरी है, those are not the basic words, those are the fine tuned words without which the subject matter cannot be summarized. इसलिए उन वर्ड्स की मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज यदि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर यदि दूसरा व्यक्ति भी कोई पैसेज बनाएगा, it is much more probable that such words are definitely going to be fused अंडर दैट पैराग्राफ. जो भी बंदा लिखेगा, चाहे वो मैं लिखूं या आप लिखो या कोई थर्ड पर्सन लिखे, वो ऐसे कॉमन वर्ड्स होंगे कि बिना उसके वो पैसेज कंप्लीट नहीं होगा. सो ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी थ्रू द कॉन्टेक्चुअल रीडिंग. तो जब भी आप कोई चीज पढ़े उसके अंदर की वोकैबुलरी, फिर कुछ पढ़े उसके अंदर की वोकैबुलरी, फिर कुछ पढ़े उसके अंदर की वोकैबुलरी. बट आप जबरदस्ती के वोकैबुलरी वर्ड्स याद न करें, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं. हालांकि I believe that I would like to discuss each and every question that has been asked in the paper, which I will do in the time to come. ये मैथ्स के सेक्शन को अपन यहां से देखते हैं. ठीक है, ये शुरू हुआ आपका मैथ्स का सेक्शन. You can read this particular passage. As per a survey conducted in a college, out of total number of students enrolled, that is 3,000 in 2021, 1,700 were girls and 1,300 were boys. Data regarding students opting for various streams, non-medical, medical, commerce, arts and fine arts showed that 25% of the students, enrolled students opted for non-medical, and the percentage of girls in non-medical was 30% of the total number of girls, 15% of the total students opted for medical, and the percentage of girls who opted for medical was 18% of the total number of girls, 25% of total number of students opted for arts, but the percentage of girls who opted for arts was 15% of the total number of girls, 16% of total number of students opted for commerce, and the percentage of girls who opted commerce was 17% of the total number of girls, and 19% of total students opted fine arts, and the percentage of girls who opted fine arts was 20% of that of the total number of girls. ये जो प्रेजेंटेशन है ना, इसको कहते हैं क्लोज प्रेजेंटेशन. जब भी पेपर में क्लोज प्रेजेंटेशन होता है मैथ्स में, तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डेटा है और वो बहुत डिफिकल्ट है. तो स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? स्टूडेंट स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, और जैसे वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, द बेस्ट वे टू मैनेज दैट स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉपिंग अप मैकेनिज्म. डाइवर्ट कर लेते हैं, दे डाइवर्ज देमसेल्व्स फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, और वो कुछ और सॉल्व करने लगते हैं. उनको लगता है चलो बीच में मैंने एक क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज छोड़ दिया, मैं उसको पढ़ने लग जाता हूँ, फटाफट वो सॉल्व हो जाएगा. एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू मिस दैट पेपर. इस साल जिसके भी 70 मार्क्स आए हैं, सिर्फ यदि वो मैथ्स का पेपर कर लेता तो उसके 80-82 नंबर आ जाते और 100% सेलेक्ट हो जाता. तो ऑल दोज पीपल हु आर एट ए स्कोर ऑफ 65 एंड 80s, 65 एंड 75, बिटवीन दैट, आप उठा करके देख लो आपने मैथ्स का पेपर मिजरेबली अटेम्प्ट किया है. मिजरेबली. इतना सिंपल पेपर था, इतना ज्यादा सिंपल पेपर था, द डिमांड वाज नथिंग. आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल आना चाहिए, नंबर 1. परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको आना चाहिए. एवरेज क्या होता है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और नॉर्मल कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको मालूम होना चाहिए. यू आर एबल टू सॉल्व दिस होल पेपर, दैट्स ऑल. ये क्लोज प्रेजेंटेशन के कारण इस बार मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ा. लेट मी सॉल्व इट इन ए मैनर. ये पूरा पढ़ने के बाद बेसिकली यहाँ पर इस स्क्रीन पर जगह नहीं है. यदि जगह होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता. आपने देखा कि इसमें नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हैं. टोटल बच्चे गर्ल्स और बॉयज. क्वेश्चंस भी देखेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल, गर्ल्स हैव आउटनंबर्ड बॉयज इन fine arts, how many girls in fine arts are more than that of the boys as a percentage of total number of boys in fine arts. मतलब लड़कियों ने जो फाइन आर्ट्स लिया है वो लड़कों से जो ज्यादा है, वो लड़कों के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा है, ये आपको कैलकुलेट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑप्टेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड सो. मतलब यदि मैं इसके अंदर की सारी चीजें एक डिब्बा बना करके लिख लूँ, आई एम एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम. सोचिए यदि मेरे को डिब्बा बनाना होता तो मैं कैसे डिब्बा बनाता इसको. ज़्यादा मारा मारी तो मुझको होता नहीं, क्योंकि डिब्बा बनाने के लिए मुझे सिर्फ इतना
मुझे सिर्फ छोटा सा काम करना होता, और उस काम में क्या करता, मैं ऐसे करके बना लेता एक चार्ट ऐसे करके, ओके, इधर बना देता हूँ। अब 5 जगह है तो मैं ऐसे 5 खाने बना लेता, और इसमें कौन कौन है आप देख सकते हो, नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल, मेडिकल, उसके बाद आपके पास कॉमर्स, आर्ट्स और फाइन आर्ट्स। उसके बाद सब में टोटल कितने कितने हैं, और गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं मुझे लिखना पड़ता। टोटल आपको दिया हुआ है। अब उसमें ये कह रहा है कि डेटा रिगार्डिंग द वेरियस स्ट्रीम्स आर सच एंड सच, और फाइन आर्ट शोड 25% ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड, सॉरी यहाँ से पढ़ लीजिए ज़्यादा बेटर होगा। डेटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, ये 5 दे दिया। शोड दैट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल। अच्छा ये हो गया नॉन मेडिकल 25, मतलब आपको पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 3000 का 1/4 निकालो। 25% इज नथिंग बट 1/4। अब आपको सच में ये पता होना चाहिए कि 25% का मतलब 1/4 होता है। आप अपने दिल से पूछो, आपको पता है 25% का मतलब 1/4 होता है? See, I'm not asking those conventional methods that we learnt in school to be applied for solving the competitive paper. 25% मतलब 25/100 into 3000. Of course you will get the answer. There is no problem in that method. But whatever that I'm asking is that you need to come out with certain different methods that could help you to do the paper much easier. You should know that 25% is equal to 1/4. That means I'm indirectly asking you to divide this number by 4. तो 3000 divided by 4 कितना होता है? 3000 by 2 1500 divided by 2 750, मतलब नॉन मेडिकल में टोटल 750 बच्चे। आगे क्या बोला है? एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन नॉन मेडिकल वाज 30, नो दैट 10% इज 1/10, तो 1700 को जब 1/10 करोगे तो 170 आएगा। और आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर टोटल 30% लड़कियां, तो 17 3s, मतलब आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल आना चाहिए बस। 17 3s 51, 510 आर द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब टोटल में से 510 को माइनस करोगे तो बॉयज आ जाएंगे, तो 750 में से 500 गया तो 250, 10 छोड़ा 240, तो ये हो गया आपके पास बॉयज। आप देख सकते हो पहला वाला सवाल, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल, ये 510। हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल, योर आंसर इज 510, मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन जो आपको दिया था ये वाला। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, इसी बेसिस पर है कि मेडिकल में टोटल बच्चे कितने हैं, उसमें से गर्ल्स कितने वो दिया हुआ है, टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो बॉयज आ जाएंगे, ऐसे सारे वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे। उसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ ऑप्शन में जाना था और एक एक आंसर को उठा के पटक देना था, दैट्स ऑल। लेकिन प्राइमा फेसी बिकॉज ऑफ द covering of the question, as it has lot of data and since it is presented in the form of a paragraph, so prima facie it gives you a feeling that the question is tough. अब देखो, there are 2 types of students who have written this particular paper. एक वो स्टूडेंट जो सब कुछ तैयार करके गया, ओके, उसको मैथ्स आता था, बट वो इसलिए नहीं किया बिकॉज द पेपर वॉज प्रेजेंटेड इन अ क्लोज्ड मैनर। सेक्शन की बात करो मैथ्स, ओके, उसको लगा कि प्राइमा फेसी टफ है, दैट मीन्स वो पहले से ये मान चुका था कि ये सवाल मेरे को नहीं बनेगा, राइट? पता है इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि जब वो मॉक सॉल्व करता था उसके पास मैथ्स को लेकर कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी नहीं। ही डिड नॉट हैव द राइट स्ट्रेटेजी विथ विच ही एक्चुअली सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्यों? क्योंकि वो जहां पर भी गया, जिससे भी पढ़ा, उसने यही बोला, पहला जीके करना, सेकंड लीगल करना, थर्ड इंग्लिश या क्रिटिकल रीजनिंग करना, फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग इंग्लिश में से जो बच जाएगा वो करना, और लास्ट में मैथ्स करना। इनवेरिएबली एवरी अदर कैंडिडेट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम हैज ऑप्टेड द सेम स्ट्रेटेजी। भाई पेपर बदल गया है, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको। आपको 15 नंबर हलवा के फॉर्म में मिल रहे हैं, मैथ्स की जगह लोकेशन तय करो पहले, और उससे पहले ये तय करो कि हर बार मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए मैथ्स के सेक्शन को सॉल्व करने का जो टाइम आप उसके लिए तय करते हो, क्या हर बार आप मॉक में उसको देते हो? आपको मैं बताता हूँ, मॉक में ज्यादातर बच्चे स्कोर करने में लगे रहते हैं कि मेरे को मॉक में ज्यादा स्कोर करना है। ये स्ट्रेटेजी है ही नहीं मॉक करने का।
मॉक में हम अपने कमियों को कम करते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ए मॉक? द पर्पस ऑफ राइटिंग ए मॉक इज नॉट टू स्कोर मार्क्स बट टू मिनिमाइज आवर वाइसेस. जो कमियां हैं हम उसको खत्म करते हैं, पहले कम करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं पहले, और रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करते फिर खत्म हो जाता है. दिस इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ए मॉक. पर यहां मैं देखता हूं हर वक्त बंदा नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है कि सर वो पिछले बार मेरे 70 आए थे, इस बार मेरे को 80 लाना है. अरे नहीं लाना है भाई. What is the problem? You got 70 out of 150, which is not even 50%. So the problem is that your score is low. कैसे improve करोगे? सर बस अगले बार मैं 75 लाऊंगा, फिर 80 लाऊंगा. किसी को भी पूछोगे ना तो वो यही बोलेगा कि इस बार आप 70 लाओ, अगले बार 3 नंबर बढ़ा दो, फिर 3 नंबर बढ़ाओ, ऐसे करके 10 मार्क में 3 नंबर बढ़ाओगे तो आपके 100 हो जाएंगे. आप चेक करके देख लो अपने आप को. फॉर द लास्ट सो मेनी मंथ्स यू मस्ट हैव रिटन मोर देन 50-60 मार्क्स. ऐसा बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा. दैट मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ मॉक. और जो आपका टेस्ट करवा रहा है या जिसके अंडर प्रिपेयर करा रहे हो, उस मूर्ख को भी समझ में नहीं आया कि इसको करना क्या था. तो चले आ रहा है लाइन से. मॉक का पर्पस होता है आपके कमियों को खत्म करना. यदि आपके मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है या आपका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा नहीं है और आपको पता है कि मेरे को उसको 30 मिनट देना है, तो आपको मॉक में उसको 30 मिनट देना है. नंबर भले आपके 0 आए, क्योंकि यदि पहली बार 0 आएगा तो अगली बार उस पर कम होएगा, और अगली बार कम होएगा तो उसके अगली बार भी कम होएगा. और जब भी हैमरिंग चालू होती है तो यार कुछ ना कुछ तो स्कल्पचर बनकर आएगा ना. बहरहाल we'll talk about how to solve a mock and how a mock has to be taken. What is the purpose of the mock? We'll discuss it later at some other day. But right now at this point of time, मैं आपको बोलूँगा this was a complete lollipop that has been given in the paper. But all the people actually got defrauded by themselves कि ये पेपर डिफिकल्ट था, प्राइमा फेसी टफ लग रहा था और मैंने छोड़ दिया. एंड टू ऑल पेरेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके अंदर जो 15 सवाल पूछे गए थे ना, पूरे के पूरे 15 सवाल में 3 सवाल थे. एक सवाल के अंदर 5 सवाल, और तीनों का एक ही फॉर्मेट था. 3 चीजें टोटल, लड़का इतना परसेंट, लड़की इतना परसेंट. ठीक है, उनको आपको बाइफर्केट करना था और दिए गए सवालों के छोटे छोटे सवालों का आंसर करना था, विच वुड नॉट टेक मोर देन 4 to 5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. मतलब एक पूरे पैसेज को करने के लिए 4-4.5 मिनट के ऊपर आपको लगेगा नहीं. मैं आपको सच बता रहा हूं, बिकॉज आई हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन जस्ट इन 12.5 minutes according to the steps that the student presumes to take while writing in the examination paper. I did not involve my methods of solving. Most of them I used which a student uses in a paper writing ability. 12.5 मिनट में तीनों सेक्शन सॉल्व करके मैंने बताया कि तुम ये छोड़ कर आए. क्योंकि जब स्टूडेंट्स आए कुछ बच्चे कि सर मैथ्स कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत टफ था, हमने छोड़ दिया, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा है मैं आपको बता नहीं सकता. मैंने टुक दैट पेपर और मैंने कहा बैठो मेरे सामने, मैंने सॉल्व इट. तब बच्चों को लगा कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं था. और जो ये चीज़ें इसमें पूछी गई, लास्ट ईयर 2022 क्लैट शुरू होने से पहले आपने पहले ही 5 दिन में बता दिया था कि ये 3 चीज़ें करना ही है, और पेपर उसी पे आया था. बाकी जो आपने 125 घंटे मैथ्स पढ़ाया उसके ऊपर कुछ नहीं आया. सो द क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स प्राइमा फेसी मान लेते हैं पहले से कि मेरे को ये करना नहीं है. सी व्हेन यू लीव इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, नोबडी कैन हेल्प यू आउट. ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है. ठीक है ना. आई थिंक आई हैव टेकन टू मच ऑफ टाइम. There are some questions that people are asking. Let me answer all of them. Sir, Prashant sir, why most of the students are choosing litigation? देखिए पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है. और सेकंड, जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं 15-16 लाख रुपए लगा देते हैं, तो आपका प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो मैंने अपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला है पहले एटलीस्ट मैं उसको निकाल लूँ. राइट. तो 2 साल काम करके यदि मेरे 15-16 लाख रुपए निकल सकते हैं, प्लस मैं एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को समझ सकता हूँ, तो वाई नॉट. किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले उसको पहले पकड़ लेना चाहिए. इफ आई गेट ए प्लेसमेंट इन ए कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे लगता है कि मैं जरूर करूँगा.
उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा वेदर आई एक्चुअली हैव मेड माई सेल्फ फॉर दिस और नॉट। यदि मुझे लगता है कि नहीं मेरे को और कुछ करना है, तो आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड हैव इनफ टाइम टू स्विच टू एनी अदर जॉब्स। सो इट इज ग्रेट, नो प्रॉब्लम। लिटिगेशन आप हमेशा कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हाँ 1-2 साल आप लेट हो सकते हैं, बट देर इज नो प्रॉब्लम टू गो फॉर ए कॉर्पोरेट जॉब एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद आप तय करें कि यस, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप डेफिनेटली विल गो टू कोर्ट एंड यू विल ऑल्सो लिटिगेट। ऐसा तो नहीं कि आप उसमें लिटिगेट नहीं करेंगे, उसमें भी आप लिटिगेट करेंगे, बट योर चॉइसेस ऑफ लिटिगेशन वुड बी वेरी लिमिटेड इन द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। और जब आप नॉर्मल लिटिगेशन करते तो आप सारे टाइप के केसेस लेते हैं, आप सिविल भी लेते हैं, आप कॉर्पोरेट के भी लेते हैं, आप क्रिमिनल के भी लेते हैं, आप सभी प्रकार के लेते हैं। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमेशा लिटिगेशन नहीं करता है, कुछ समय के बाद वो अपना होराइजन को बढ़ाता है, राइट। और जैसे जैसे वो अपने होराइजन को बढ़ाता है वैसे वैसे वो अपने आप में कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन जाता है, क्योंकि जिस दिन आप सारी चीजें प्रैक्टिस करने लगोगे यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अपॉइंट लॉट मेनी पीपल अंडर यू एंड इन दैट वे यू आर गोइंग टू रन ए बिग कॉर्पोरेट हाउस। तो शुरुआत में कर लेने से कोई बुराई नहीं है, आपको कल्चर समझ आ जाता है। और सच बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में बहुत मजा आता है। ए स्टूडेंट ऑफ माइन, आई वुड लाइक टू नेम हिम, उसका नाम लेना चाहूंगा, समत श्रीवास्तव, समत शर्मा, एनयूजीएस पास आउट। उसको कॉर्पोरेट में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, बोलता सर शाम को 6 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है एंड आई लव इट वेरी मच। तो ये बड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि मेरे को करना है कि नहीं करना है कॉर्पोरेट जॉब, बट करने में कोई बुराई नहीं है। द फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज टू बी टेकन, फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लैट रैंक इज 6652, विमला चौधरी, एंड ओबीसी रैंक इज 788। कैन आई टेक एनी लीव? नो सॉरी, आपको नहीं मिलेगा विमला, आपकी रैंक काफी पीछे है। प्रशांत सर, मैंने आपका जवाब दे दिया। What is the greatest advantage that doing BA LLB from the top 5 NLUs? Why students are too stressed to enter top NLUs? Can a top NLUs guarantee students becoming top litigations? प्रशांत सर, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है कि इफ यू गो टू टॉप लॉ स्कूल तो आप दुनिया में हमेशा टॉप रहोगे। टॉप स्लॉट ऐसे नहीं होता है। आप किसी भी एनएलयू से पढ़े, आपको किताबें वही पढ़नी है। आई एम टेलिंग यू, इफ यू गो टू एनएलएसआईयू बैंगलोर और यू गो टू एनी नॉर्मल कॉलेज, यू आर सपोज टू स्टडी द सेम लॉ बुक्स। उसमें कोई चेंजेस होना ही नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। आई एम टेलिंग यू। देखिए, यदि आप आईआईटी जाते हैं और यदि आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आईआईटी जाके आप नॉर्मल कुंजी से तो पढ़ाई नहीं करोगे। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी फ्रॉम ए वेरी गुड रेफरेंस बुक। लॉ में ऐसा कुछ नहीं, लॉ में आपको सब कुछ पढ़ना है। लॉ में सेक्शंस तो आपको पढ़ने ही है ना। आईपीसी के सेक्शन यदि है तो सेक्शन नंबर 300 आपको भी वही पढ़ना और जो बैंगलोर में जा रहा है उसको भी वही पढ़ना। देयर इज नो चेंज एट ऑल। ठीक है, लड़के टॉप 5 नेशनल स्कूल्स में इसलिए गए क्योंकि हमने ना एक टैबो बना रखा है। आपको याद होगा एक दिन मैंने बोला था डैजलिंग 1 2 3। आज हर एक स्टूडेंट को यह परसेप्शन बन गया है कि मैं इस पर्टिकुलर कोचिंग क्लास में जाऊंगा तो मेरा टॉप रैंक आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहां पर तो इतना पिटा हुआ है कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब टू से समथिंग दैट कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचकर गए कंप्लीट फेलियर। तो आपको चाहे बैंगलोर जाओ या चाहे आप नालसार जाओ या आप नॉर्मल कॉलेज जाओ, आपको लॉ तो वही पढ़ना है जो किताबों में लिखा हुआ है। यू कैनॉट चेंज एनी ऑफ द सेक्शंस। और उस लॉ से क्या इंप्लाई होता है, यू कैनॉट ऑल्सो चेंज दैट। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। हाँ, ये जरूर बढ़िया हो जाता है कि जब आप बैंगलोर जाते हैं, यू आर गोइंग टू सिट विद द लाइक माइंडेड पीपल, यू आर ऑल्सो ए टॉपर, द अदर पर्सन इज ऑल्सो ए टॉपर, यू डू दैट कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन। बट ये हेल्दी हो तो बेटर है। और नंबर कभी भी डिसाइड नहीं करता है, बट ये मेच्योरिटी आने में स्टूडेंट्स में भी टाइम लगता है। तो मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजिकली स्टूडेंट ये स्ट्रेस लेता है, कॉलेज के अंदर पढ़ते हुए भी लेता है, और ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड योर सेल्फ बीइंग ए स्टूडेंट इन ए टॉप कॉलेज दैट यू हैव डन द बेस्ट। अब उसके बाद आप अपने लिए पढ़ो कि मेरे को इसमें से क्या आउटपुट लेना है, विच आई थिंक आर गोइंग टू बी वेरी सूटेबल टू मी एंड दैट वुड हेल्प मी टू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर माई सेल्फ। उसके बाद कॉम्पिटिशन का मतलब खत्म हो जाता है। सो पीपल परसू टॉप कॉलेजेस जस्ट टू फिगर इट आउट कि यदि मैं उस जगह पर जाऊंगा तो मेरे को मेरे जैसे लोग मिलेंगे, और मेरे जैसे लोग मिलेंगे तो मेरी खुद की पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
प्रशांत सर, इस बात को याद रखिए, एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। यदि आप इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप इंटेलेक्चुअली डेवलप होंगे। किसी नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे, यदि इंटेलेक्चुअल का स्तर यदि कम है तो आप कभी ओवरली इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए होड़ लगी रहती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, राइट। ये हर जगह पर है। आप कितना इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप कितना आर्ग्यू कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कॉलेजेस है जिसमें बिल्कुल इंटीरियर में कॉलेजेस, उसमें आर्ग्यूमेंट का स्तर ही नहीं है। आप बड़े जगह पर जाते हैं, मूड कोर्ट होता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और चाव से पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है ना, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अब ये छोटे वाला कॉलेज वाला बंदा यदि किसी ऐसे जगह पर जाएगा तो उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस पहले ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ये सोचेगा दैट आई हैव एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज आई एम स्टडिंग राइट नाउ इन ए कॉलेज एंड आई एम गोइंग टू डू ए कॉम्पिटिशन विद द कॉलेज ऑफ द नेशनल रेपुटेशन। तो वो पहले ही कई बार ऐसा है, उसके मन में आ जाता है कि अरे यार मेरा कुछ नहीं होगा या मैं हार जाऊंगा, ऐसी फीलिंग आती है। इसीलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज द रीजन वी आर मेड फॉर, करेक्ट। एट द सेम टाइम वो जो स्टूडेंट टॉप पर है वो एक अपर एज में रहता है, बिकॉज ही वुड बी आर्ग्यूइंग विद द बेस्ट ऑफ द माइंड्स, एंड एज ए रिजल्ट बेस्ट ऑफ द माइंड्स मतलब कोई बंदा सिलेक्ट होके गया है तो उसमें कुछ बात होगी तभी तो सिलेक्ट होके गया। तो उसके साथ जब आप आर्ग्यू करते हो तो डेफिनेटली यू आर ऑलवेज एट ए बेटर एज टू कॉम्पीट विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज द रीजन वाई इस पर्टिकुलर टॉप स्लॉट में हमेशा लड़ाई और होड़ बनी रहेगी, एंड दिस विल कंटिन्यू कीप ऑन मूविंग विद द सेम पेस, नोबडी कैन स्टॉप इट। I scored 15,683 rank in CLAT. Andhra Pradesh AP women rank 124 and GC of AP rank is 190. आपको वैकेंसी में DSNLU मिल सकता है बट नॉट वेरी श्योर, क्योंकि आप DSNLU के बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और चूंकि आपके यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल भी है और अच्छा खासा सीट्स है आपके यहाँ, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मे गेट। जनरल रैंक एपी रैंक 190, जनरल एपी रैंक यदि आपकी 190 है तो भी पीछे है, बट मे बी ड्यूरिंग द वैकेंसी यू मे गेट। ओबीसी रैंक 770 आपको नहीं मिल पाएगा, आई एम सॉरी। I think answered all of them. So the today's purpose of the lecture or the objective of the session was just to make people understand that do not try to go for quantity, try to go for quality. Read a little, understand more, apply more, open your mind. Do this process and do each and every single passage that comes to you and try to read the refined material. As you could see in 2020, 2021, 2022 paper, the question paper was not very tough. The question paper was very simple. Somebody who could understand, read properly will be able to solve almost every question of that paper. And mathematics is a must. And you should never miss mathematics, any of the questions, because all those questions are nothing but letters. Thank you so much. May God bless you. Have a great day.